be proper. Kashish, be proper now. Take out your maths books, everyone, and be proper at your places now. What is this going on? Why you are not sitting properly, Kashish and Raj? इतनी देर में आपको पता होता है ना बेटा, आप लोगों के पास में टाइम टेबल आता है, यू डोंट नो कि आपकी कौन सी क्लासेस है. You should have your books, everything you should have. Your eraser, pencil, book, should have it. Okay, so now we are going to start today. We will start with the new chapter, chapter number 6, division. Okay, yesterday I have already told you students to maintain your homework regularly because we are starting from the new chapters now and last वाला कुछ भी नहीं आएगा. So don't worry about the last homework. जो भी जितना किसी का अगर कोई pending हो, so forget it. उसको भूल जाइए. ठीक है. Now we are going to start the new. पहले का कुछ भी वर्क नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में. So we are going to start the new one now. है ना. तो अभी what we are sending you, जो भी हम आपको homework continuously we are sending you, just complete in your copies very neatly and tidy. Okay, complete it on time, otherwise you will get the problem. Then after you will say, ma'am, we haven't completed it, send this homework, send this homework. We will not send it again. Okay, so I'm telling you very carefully, whatever the homework we are sending you, just do in your copies. And when we are saying to complete in your book, so complete it in your book. And when we are saying to complete in your copies, you should have do it in your copies. जब हम बोले आपको अपनी बुक्स में करना है तो बुक्स में करिए, जब हम बोले कॉपीज में करना है तो कॉपीज में करिए. बट डू योर होमवर्क ऑन टाइम. ओके, समय पर करिए. ओके, so we will start chapter number 6 now, which is division on page number 115. Okay, so take it out. Take it out, everyone. Hurry up. Okay, and you should have your pencil and erasers also. I have already told you when we are doing the maths, जब भी हम maths कर रहे हैं, you should have your pencils and erasers and a copy also. Okay, if you don't have, so from tomorrow, from next time, whenever you are doing the maths, जब भी आप maths करने जा रहे हैं, when you are maths period, you should have it. आपके पास में होना चाहिए. Okay. Some students are still joining. Kashish and Pratik, just on your video. Okay, so let's start. डिवीजन करने जा रहे हैं हम अभी. ओके, सो डिवीजन के लिए बेसिकली सबसे पहले हमें टेबल्स भी आने बहुत जरूरी हैं. ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें टेबल्स आने बहुत जरूरी है, ऐसे ही हमें डिवीजन के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमें टेबल्स आने चाहिए. ओके, सबसे पहले मैं जो आपको चीज सिखाने जा रही हूँ, व्हाट इज सिंपल सी बेसिक चीजें हैं. कम टू योर एक्सरसाइज 6A, है ना. किस पे आ जाइए, 6A पर आ जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू विद द पिक्चर्स सम. पिक्चर सम्स करने जा रहे हैं हम. ठीक है, सो कम टू द एक्सरसाइज 6A which is on page number 117. okay, so pay attention. पेज नंबर 117 निकाल लीजिए. okay, and now we are going to start. Just hold on. Okay, so first question is, as you can see, बेसिक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, डिवाइड. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिवाइड. डिवाइड का सिंबल होता है दिस वन.
कौन सा होता है? ये लाइन, देन एक नीचे डॉट, देन इधर डॉट। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन, है ना। डिवाइड का सिंबल होता है ये ना, जिस सबके सिंबल होते हैं ना, जिस ऐड का सिंबल दिस वन, सब्ट्रैक्शन का दिस वन, मल्टीप्लिकेशन का दिस वन, एंड डिवीजन सिंबल इज दिस वन। ओके, सो whenever we are doing to do division symbols का इस्तेमाल करते हैं हम। as you can see, आप देख सकते हो 12 बनानास हैं हमारे पास में। ठीक है, क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा सब, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएंगे। डिवाइड 12 बनानास, हमको 12 बनानास को डिवाइड करना है। ओके, what we are going to do, we are going to divide 12 bananas equally among 3 monkeys, है ना। आप देख सकते हो आपको एक साइड पे बनानास की पिक्चर्स दी हुई हैं एंड द नेक्स्ट साइड पर आपको 3 monkeys की पिक्चर्स दी हुई हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उन्होंने क्या बोला है कि डिवाइड 12 बनानास इक्वली, मतलब इक्वली मतलब बराबर। इक्वली का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वली का मतलब होता है बराबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बराबर, मतलब सब में इक्वल पार्ट्स में बंटने चाहिए, है ना। किस में बंटने चाहिए? वी हैव 3 monkeys हियर, हमारे पास में कितने monkeys हैं? 3 monkeys हैं। ओके, सो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी बनानास डज ईच मंकी गेट। हर एक, ईच मतलब हर एक मंकी को, मान लीजिए ये 3 monkeys है ना, दीज आर 3 monkeys, और हर एक मंकी को कितने बनानास मिलने चाहिए। सो कैसे पता चलेगा अभी हमें? ध्यान दीजिए, हमारे पास में 12 बनानास हैं। ओके, और डिवाइड का साइन लगाएंगे हम, एंड हमारे पास में कितने मंकीज है? 3 monkeys हैं। ओके, तो हम क्या कहते हैं, 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, देन हमें क्या पता चल जाएगा? देन हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास में कितने मंकीज हैं, सॉरी कितने बनानास हैं। अब आप कहेंगे कि अब हम डिवाइड कैसे करेंगे? सो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम डिवीजन कैसे करते हैं, है ना। सो पे अटेंशन, दिस इज आवर सम। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? डिवाइड करने के लिए हमारे पास ये होता है, डिवाइड का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन करते हैं ऐसे, देन ऐसे 2 ब्रैकेट्स निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिवीजन। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है ना अच्छे से सबको? ठीक है मैम, हमें डिवाइड करने आते हैं। बेटा, आई एम नॉट आस्किंग यू, जस्ट बी क्वाइट, आई एम नॉट आस्किंग टू एनीवन। मैम ये आते हैं। आयशा, व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट आस्किंग यू। आप लोगों को समझ में नहीं आती एक बार? अगर आते हैं तो इट्स वेरी नाइस, जिनको नहीं आते हैं उनको सीखने दीजिए, है ना। हमारे पास में बड़ा नंबर कौन सा है? 12, सो वी विल राइट हियर 12, है ना। और व्हाट इज दिस? दिस इज 3। क्या है ये हमारा? 3, तो हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? सो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये करेंगे, आपको एक और चीज बता दूं मैं कि इस नंबर को, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, है ना, जैसे ये 12 है हमारा, तो हम इसको पता है आपको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं आपका डिविडेंड, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। ध्यान से सुनिए सब, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, एंड जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। व्हाट वी से? डिवाइजर। आई बात समझ में? और अभी और ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी कि और आगे किसको क्या बोलते हैं। सो हमने अपना डिविडेंड यहाँ पर लिखा,
देन हमने अपना डिवाइजर यहाँ लिखा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, है ना. कितने टाइम्स तक पढ़ेंगे, जब तक ये वाला नंबर नहीं आ जाता. मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, सॉरी, कि ये वाला नंबर टेबल में मौजूद हो. जरूरी नहीं है कि ये वाला नंबर टेबल में मौजूद हो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है. सो हम इस नंबर तक टेबल पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. अरे ये तो आ गया. 3 4s are कितना होता है, 12. So what we will do, we will write 4 here. जितने टाइम्स, कितना है, 3 4s are. So जितने टाइम्स होगा, यानी कि 3 4s are, so 4s are हम यहाँ लिखेंगे. ओके, ध्यान दीजिए सब. 4s are हम यहाँ लिखेंगे, और फिर 3 4s are क्या आया हमारा आंसर, 12. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन पुट ऑन करेंगे. ठीक है, लाइन पुट ऑन करेंगे. अब हम करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस, है ना. ये करने के बाद हम माइनस करते हैं. सो 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 0. 1 में से 1 गया, 0, नथिंग. सो क्या मिला हमें, 0. आवर सम इज फिनिश. आई बात समझ में. ठीक है, सबको आया समझ में. इट्स सो इजी, है ना. कुछ नहीं बचा सब्ट्रैक्ट करने पे, ओनली वी गॉट 0 हियर, है ना. अभी और सीखते हैं, आएगा हमें, है ना. सो पे अटेंशन. इसी तरह के मैं आपको और सम बताती हूँ, जस्ट लाइक, हाँ यस, व्हाट इज, अभी मैंने आपको बताया था कि जिस सम को हम करते हैं उसको हम डिविजन बोलते हैं, जिससे हम करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं. एंड जो ये हमारा आंसर आता है, आंसर क्या आया हमारा, 4, है ना. सो हम इसको क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा आंसर होता है इधर का. ओके, इसको हम बोलते हैं हमारा क्वेश्चन, QUOTIENT. ओके, तो हम इसको बोलते हैं क्वेश्चन. ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से. तो दीज आर 3. पहला डिवाइड जिससे किया, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, है ना. जैसे कि देखो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया था, एंड हमारा आंसर आया 4. ओके, सो दिस इज कॉल्ड, मैंने आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. इसको हमने डिविडेंड बोला, है ना. इसको हमने क्या बोला, इसको हमने डिवाइजर बोला, है ना. एंड इसको हमने क्या बोला, इसको हमने क्वोटिएंट बोला. ओके, सो दिस इज क्लियर. आयशा, स्लीपिंग टाइम है. आई थिंक यू शुड स्लीप, आयशा. लीव द क्लास and just go to sleep. Raj Chahat, be proper. I just want to see your face, not just your wall. Yes, सामने आइए. Okay, so सबको समझ में आ रहे हैं, I think. 1 by 1 सबको समझ में आ रहा होगा ना अभी डिवीजन. Okay, so अभी हम और आगे बढ़ते हैं. So मैंने आपको ये सम बताया कि अभी आप क्या लिखेंगे, how many bananas we have got, 4 bananas. हर एक मंकी को कितने बनाना मिले, 3 monkeys थे ना. मैंने आपको बताया कितने monkeys थे, 3 monkeys थे एंड 12 bananas थे. सो कितने बनाना मिले हर एक मंकी को, हर एक मंकी को 4 bananas मिले. सो what you will write here, you will write 4, है ना. कैसे लिखेंगे आप, आपके सामने आपके सम बनाए हैं और वहां पर ऐसे 2 डैश दिए हैं, डिवाइड का साइन लगा है, डैश और डैश, इसी तरह से लिखा है ना. सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 12 हेयर, क्योंकि 12 बनानास है. देन किससे डिवाइड किया हमने, 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 monkeys थे, है ना.
और हमारा डिवाइड करने पे आंसर आया 4. ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आ गया सबको समझ में? यू विल डू लाइक दिस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ अभी मैं आपको बता रही हूँ जो नेक्स्ट सम है हमारा. व्हाट इज दिस? There are 21 chilies. Come to the page number next to the page number 118. Okay, अभी हमारे पास में 21 चिली यानी कि मिर्ची है ना, चिली है मिर्ची. और कितने पैरेट्स हैं हमारे पास में? 3 पैरेट्स हैं. और हमको उन चिलीज को, पैरेट्स पता है ना आपको, पैरेट्स क्या खाते हैं? चिलीज खाते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद होती है मिर्ची. सो पैरेट्स में 3 पैरेट्स में इन सारी चिलीज को डिवाइड करना है इक्वली. मतलब हर एक पैरेट को इक्वल चिलीज मिलनी चाहिए. समझ में आया? सो हम कैसे करेंगे? इट्स सो सिंपल. ठीक है, जैसे कि हमारे पास में ये सम है हमारा. क्या सम है हमारा? हमारे पास में 21 चिलीज हैं और कितने पैरेट में डिवाइड करना है? 3 पैरेट्स में. सो व्हाट वी विल डू, फिर से हम डिवाइड का फॉर्मेट बनाएंगे, है ना. डिवाइड का फॉर्मेट बनाएंगे. हमारा बड़ा नंबर हम अंदर लिखेंगे. ओके, एंड 3 को हम यहाँ लिखेंगे. हमारा बड़ा नंबर यानी कि हमारा जो डिविडेंड है उसे यहाँ पे लिखेंगे. जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब हम डिवाइड करेंगे यानी कि फिर से हम 3 का टेबल पढ़ेंगे इस नंबर तक, है ना. सो चलिए पढ़ते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 and 21 is here. मिल गया हमें. सो कितने टाइम्स गया? 7 times. So what we will do, we will write 7 here and 21 here. क्योंकि 3 7s are 21. Okay, now what we will do, we will put on a line here and what we will do, we will subtract, minus करेंगे अब. Okay, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0. सो दोनों के जगह जब 0 आता है तो 2 0 भी लगा सकते हैं आप, या फिर हम ओनली 1 0 भी लगा सकते हैं. ठीक है, फिनिश. ओके, इट्स डन. और हमारा आंसर क्या आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या आ गया क्वेश्चन? हमारा आ गया 7, यानी कि 7 चिलीज हर एक पैरेट को मिलेगी. आप प्लस करके देख लो. 7 चिलीज अगर एक पैरेट को देते हैं तो 7, और दूसरे पैरेट को 7 देंगे तो 7 और 7 कितने हो गए? 14. और फिर थर्ड वाले पैरेंट को देंगे तो फिर कितने हो गए? 21. आ गई ना बात समझ में? देखो हमने चेक भी कर लिया अपना, है ना. चेक हो गया ना हमारा आंसर. सो यस, ठीक कर लिए. ओके. तो सबको समझ में आ रहे हैं? कशिश, आर यू गेटिंग दिस सम्स? कशिश, रिप्लाई मी फास्ट. बेटा यू हैव, ओके. अगर किसी को सम समझ में नहीं आए so you can ask me again. I don't have any problem to explain you again. Okay Kashish, just keep yourself mute now. Dolly, are you getting? Okay, very good, very good. Dolly, are you getting? Aisha, just keep your mic off. Dolly, I am talking to you beta. आपको समझ में आ रहे हैं? Okay, good. Yes ma'am. Okay, good, good. Okay Aisha, if you have done very nice. मैम इसमें कैसे करना है? किसमें कैसे करना है? मैम इसमें तो मैम किसी चीज की मैम पिक्चर नहीं है. किसकी पिक्चर नहीं है? है तो सही इतनी सारी पिक्चर्स. मैम ये तो मैम चिली की है मैम, ये वाली मैम थर्ड वाली. ओके, बता देंगे आपको, डोंट वरी. जरूरी नहीं है आपको पिक्चर्स चाहिए हो, आपको वहां पे डिजिट्स भी तो दिखनी है बेटा. डिजिट्स नहीं देख रही हो आप? क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे पूरा? जस्ट कीप योर माइक ऑफ. आयशा, पढ़ती नहीं हो आप सम पहले बेटा?
आपने सम पढ़ा? व्हाट इज द सम सेइंग टू अस? बताइए। सम बोल रहा है हमें देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है अब, और उसमें कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, यानी कि 20 स्टूडेंट्स है। ओके, सो व्हाट वी हैव हियर, दिस इज द डैश एंड डैश एंड डैश। सो एक क्लास में हम यहाँ पहले लिख लेते हैं 20 स्टूडेंट्स हैं। आई हैव रिटन हियर 20। ओके, और वो कह रहा है आ टीचर मेड 5 टीम, टीचर ने 5 टीम बता दी है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो 1 2 3 4 5 टीम बना दी है टीचर ने। आप देखिए 5 पेयर में बच्चे बैठे हैं, टीम में बैठे हैं, सॉरी। आप देख लीजिए, और हर एक टीम में कितने कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। पता चल रहा है हमें ऑब्वियसली, है ना। और हम क्या करेंगे? टीचर ने कितनी टीम्स बनाई है? टीचर ने 5 टीम्स बनाई है। कितनी टीम बनाई है? 5 टीम। और आपको क्या करना है? आपको ये फाइंड आउट करना है कि हर एक टीम में कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए जस्ट लेट्स फाइंड आउट। आ जाते हैं अभी हम। वी हैव अगेन ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ डिवीजन। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिवीजन। 20 को हमने यहाँ लिखा, देन 5 को हमने यहाँ पुट ऑन किया, है ना। 20 is our dividend and 5 is our divisor. Okay, then what we are going to do? We are going to अभी हम रीड करने जा रहे हैं। We are going to read the table of 5. कितने टाइम्स तक? जब तक ये वाला नंबर नहीं आ जाता। ओके, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20. It's so easy, है ना। कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। 5 fours are 20. Then we will put on a line here. Again we will do the subtraction. 0 में से 0 आएगा ऑब्वियसली। 2 में से 2 लेस किया तो 0. So this is the whole 0. So we have finished this sum. What is the answer? Answer is 4. We will write 4 here, which is our quotient, है ना। ये हमारा क्या आ गया हमारे पास में कि हमें हर एक टीम में जो 5 बच्चों की टीम बनी है उसमें कितने बच्चे होंगे? हर एक टीम में 4 स्टूडेंट्स होंगे। कितने स्टूडेंट्स होंगे? 4 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यू आर क्लियर? नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल? अभी सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? ओके, Yes, ma'am. okay, good. Now come to the exercise 6b, and this work I have already sent it you in your homework. आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी भेजा है, and you will complete in your books. आप अपनी बुक में करेंगे, you will not do in your copy. Yes बेटा, मैम हमारी उसमें वो होमवर्क आता है मैम, वो नहीं आ रही है सर मैम हमारी। क्यों राज? Why you are not in group? आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? बोलो just fast. मैम नहीं है। क्यों नहीं हो बेटा? आपने हितेश सर को फोन करके पूछा? बोलिए राजचाहर। पूछा आपने? नो मैम। तो फिर कौन टेंशन लेगा इन सब चीजों की बेटा? जब तक आप हमें नहीं बताओगे हमें कैसे पता चलेगा? अभी क्लास फिनिश होने के बाद आप हितेश सर के नंबर पे कॉल करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और अपने अपने नंबर्स को बोलेंगे ऐड करने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है राज? यस मैम। ओके, आज ही करवाइएगा ये काम। डॉली जस्ट कीप योरसेल्फ म्यूट। व्हाई यू हैव जस्ट ऑन योर माइक नाउ? जस्ट कीप इट योर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बेटा आप लोगों की। यस, सो कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। एक्सरसाइज 6b निकाल लीजिए। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नाउ। आप देख सकते हो फर्स्ट वन तो हो रहा है, सो जस्ट लीव इट। आपको क्या करना है इसमें? आपको बहुत समझदारी से ये एक्सरसाइज करनी है, तो ध्यान से सुन लीजिए सब, ठीक है।
सबसे पहले हमको ये देखना है पिक्चर में, केयरफुली पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है। हर एक पिक्चर में कुछ ना कुछ ग्रुपिंग हो रखी है एंड द डिवीजन फैक्ट दे रखे हैं। अभी हमको डिवीजन फैक्ट्स निकालने हैं। डिवीजन फैक्ट क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ लेते हैं, डिवीजन फैक्ट क्या होते हैं। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ डिवीजन फैक्ट्स, तो ध्यान दीजिए क्या सिखा रही हूँ मैं आपको, डिवीजन फैक्ट्स। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे मैम क्या सिखा रही हैं। डिवीजन फैक्ट्स होते हैं जैसे कि यस, मान लीजिए हमारे पास में 18 बॉल्स है। क्या है? 18 बॉल्स है। ओके, और हमको उनको 3 स्टूडेंट्स में, कितने स्टूडेंट्स में? 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर बांटना है ना? कितने स्टूडेंट्स में बांटना है? 3 स्टूडेंट्स में बांटना है। दिस इज आवर डिवाइड सिंबल। सो हम कैसे करते हैं सम? मैंने अभी आपको सिखाया, हम ऐसे करते हैं। हमने 18 यहाँ पुट ऑन किया, 3 यहाँ लिखा, 3 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे चेक करने के लिए कि आता है कि नहीं। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 6 यहाँ लिखा एंड 18 यहाँ लिखा, देन हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 0। ऐसे सिखाया ना मैंने अभी आपको, है ना? लेकिन अभी हम डिवीजन फैक्ट्स निकाल रहे हैं। सो हम कैसे निकालते हैं कि अब हमें इसके डिवीजन फैक्ट बताने हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले डिविडेंड, जो हमारा डिविडेंड था, है ना? कितने स्टूडेंट्स में बांटना था? 3 स्टूडेंट्स में। कितने स्टूडेंट्स में बांटना था? ध्यान दीजिए। आयशा, आर यू नॉट गेटिंग एनीथिंग? मैं आपको लीव कर देती हूँ, क्लास से रिमूव कर देती हूँ। आयशा, आप मत पढ़ो बेटा, क्लास में मत आया करो। सो अभी मैं क्या सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए। डिवीजन फैक्ट्स, 18 बॉल्स थी, 3 स्टूडेंट्स में बांटना था। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। क्या आंसर आ गया बेटा? 6। ठीक है, और अब एक बात ध्यान दीजिए, हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास में वही 18 बॉल्स है। ध्यान दीजिए, कितनी बॉल्स हैं? 18 बॉल्स हैं। अब हम उनको कितने स्टूडेंट्स में बांटेंगे? अब हम उनको 6 स्टूडेंट्स में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? 6 स्टूडेंट्स में। सो व्हाट वी विल डू, अगेन व्हाट वी विल डू, हम डिवाइड करेंगे 18 को 6 से। चलिए 6 का टेबल पढ़ते हैं आप। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 आ गया हमारा। माइनस किया, 0 आ गया। करेक्ट? ठीक है, अब मैं आपको सम बता रही हूँ। अभी हम 18 स्टूडेंट्स को 3 में बांटा था हमने, तो हमारा आंसर आया 6। अभी हमने 18 स्टूडेंट्स को, 18 बॉल्स को 6 स्टूडेंट्स में बांट दिया, तो हमारा आंसर आया 3। आया ना 3? देखा सबने? सो क्या देखा आपने? ये देखो, डिवीजन फैक्ट हम इसको बोलते हैं कि जब हमने 18 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया? अबे पे अटेंशन हियर। 18 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 6। ओके, जब हमने 18 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3। तो हमें डिवीजन फैक्ट के लिए कुछ भी नहीं करना होता। आपने क्या देखा इसमें? चीज में एक चीज है, देखिए कि जब हम 18 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। लेकिन जब हम यहीं से देखिए 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। यही तो हमारा डिवीजन फैक्ट है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए जैसे हमारे पास में 21 है, अभी हमने 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल 21 में पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। समझ में आया? ओके, और अभी क्योंकि 7 का टेबल 7 का टेबल पढ़ा हमने तो हमारा आंसर 3 आया, और हमारा
3 आया ना, और 3 का टेबल पढ़ोगे 7 टाइम्स, यही सेम चीज है, तो भी आंसर 21 आएगा। इट्स सो सेम। यहाँ पर देखिए 3 का टेबल पढ़ा था तो आंसर 6 आया। अब 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो भी हमारा आंसर 18 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब हमने 3 का टेबल पढ़ा तो हमारा कितने टाइम्स आया? 18, 6 टाइम्स आया। लेकिन जब हमने 6 का टेबल पढ़ा तो हमारा कितने, देखिए आपको चेक करवाती हूँ, 3 6 18 होता है। ओके, और अब इसको घुमा दो, इस नंबर को, 3 6 18 होता है ना, और आप 6 को पहले ले आओ और 3 को ले आओ इधर, और 6 3 भी 18 होता है। सेम सेम है ना, सेम सेम। आप टेबल कोई भी बोलकर देखिए, आप कोई भी टेबल बोलेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। आपने क्या बोला? 2 3 6, 2 3 6। अब आप उल्टा कर दो, 3 2 भी 6 होता है। देखिए आपने क्या पढ़ा? 3 2 6। चेक कराना आपने, देखो अच्छे से, 3 2 6, और हम अब इसको उल्टा कर दें, 2 3 भी 6 होता है। सो ये होते हैं आपके डिवीजन फैक्ट। मतलब आप किसी टेबल को पढ़ेंगे और जितने टाइम्स पढ़ेंगे वो उसी टेबल में भी जाता है। यानी कि आपने 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा तो आपको 6 आया, और जब आपने 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तब भी 6 आया। आया ना सेम आंसर? तो दिस इज कॉल्ड द डिवीजन फैक्ट्स। ये कहलाए आपके डिवीजन फैक्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तो 21 आया, है ना। अब हम उल्टा कर देते हैं, अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, है ना, तो 7 टाइम्स में 21 आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन फैक्ट। बस हम इन नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं। आई बात समझ में? विराट आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में, बल्कि ये तो बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये समझना है। आप चेक करिए, कोई भी टेबल बोलिए। जैसे चलिए 9 का टेबल बोलते हैं, 9 का टेबल आता है ना आपको, 9 का 5 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो चेक करो, 9 1 9, 9 2 18। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, 9 3 20 7, 9 4 36, 9 5 45। सो क्या मिल रहा है हमें? 9 5 45। और अब ये 9 5 45 है, और अगर हम 5 का टेबल पढ़े, क्योंकि 5 आया ना, अब 5 का पढ़ लो तो देखो 5 9 45 होगा। चेक कर लो, अभी आप 5 का टेबल पढ़ो, अब रिवर्स कर दो, उल्टा नंबर, ये नंबर पहले ले आओ और ये नंबर देखो इधर बाद में। तो 5 का टेबल पढ़े, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, और देखो हम आ गए 5 9 45। तो देखा आपने, अगर हम 5 9 करें तो भी 45 आ रहा है, और 9 5 करें तो भी 45 आ रहा है। समझ में आया? यानी कि जिस टेबल को हम जितने टाइम्स पढ़ते हैं और उनको अगर घुमा दें, यानी कि इस तरह से रिवर्स कर दें, अब हम 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़े तब भी 45 ही आएगा। ओके, सो सबको समझ में आ गई ये वाली बात? अबे आ रही है बेटा समझ में? अबे आर यू गेटिंग? रिप्लाई तो करो बेटा। अबे आई एम टॉकिंग टू यू, बोल क्यों नहीं रहे हो? धैर्य, आप बताओ समझ में आ रहा है? मैम यस, मैम Okay. यस।
ओके बेटा, ओके। राज, आपको समझ में आया? हाँ भाई बोलो यस बेटा। मैम। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अबे, आर यू सेइंग समथिंग? अबे, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है मुझे। अपना माइक ऑफ कर लो। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? Kashish, can you tell me this is clear to you, beta? यस मैम। Okay, good. Parish, this is not your class. अभी आपका क्लास का टाइम नहीं हुआ है. Just leave it. Leave your class, Parish. Okay. So this is clear. I think अभी सबको clear हो गया होगा. So ये कहलाते हैं आपके डिवीजन फैक्ट्स, है ना? अब जैसे मैंने देखो अभी आपको क्या बताया कि 5 9 45 होता है और 9 5 भी 45 होता है। अब हम करते हैं इनके डिवीजन फैक्ट्स। क्या करेंगे? डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट करने के लिए ध्यान से सुन लीजिए। आयशा को तो पता नहीं व्हाट क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू। डिवीजन फैक्ट करने के लिए आपको ये वाला नंबर लेना होता है। क्या लेना होता है? ये वाला नंबर। सो 45 यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? एंड डिवीजन का साइन लग जाएगा। ओके, सबसे पहले हमने ये वाला सम लिया। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये 5 है तो 5 को यहाँ लिखा और 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स। ओके, फिर से हमने 45 लिखा, फिर डिवीजन का साइन लगाया। अब 5 से कर लिया, अब किससे करेंगे? 9 से। सो 9 से किया, आंसर आ गया 5। सो ये कहलाता है आपका डिवीजन फैक्ट। आ गई बात समझ में सबको? बताइए, आ गई बात समझ में? विराट आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, कशिश आपको आया समझ में? यस मैम। ओके, डन। आयशा को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है बहुत सारी, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया होगा।